students, welcome to the official YouTube channel of Sagar College of Science, Baleshwar. As you know that yesterday I have already completed the chapter which is writing a paragraph, and I have already discussed in brief regarding what are the steps, what are the formulas, and what are the things we need to learn by heart. So that chapter is completed, but I told you that I will be giving you few activities which will be helpful for you for practicing connectives. See, practicing connectives is like today I will be giving you three this kind of fill in the blanks kind of practice things which will be helpful for you for writing and finding words related to what? Connectives. Connectives को find करिया पे तुमको किसी words किसी paragraph में दे देबे, but तीनटा paragraph रे तो तुम्हें किसी तमर हबनी कौन करिबो तुम्हें सेटा practice करिया पई I will give you some activities which are there already in your book. I'll tell you, then you have to just practice. As I told you yesterday that practice and practice will make you perfect, nothing else. मुझे तीनटा दे देबे activity सेटा को तुम्हें जदि try करिबो तान तुमको गोटे basic idea मिल जिवो जे कोठी को word ताको put करिया रछ। हम काली कोन कहिथिली जे I'll be giving you 3 to 4 activities in which ए जे ऑप्शंस गुडा एटारे किछि पैराग्राफ मु अवेलेबल करि देबी माने देई देबी सेटु तुमे चूज करके लिखिबो आ गुटे के दुईटा पैराग्राफ मु एम्ति खाली देई देबी सो दैट यू विल पुट words from your own vocabulary which are connectives which are present in your book page number I guess 11 जोटा मु तुमको कहिथिली काली मुखस्त करिया पई जोटा मु तुमको देइथिली बुक रे जोटा अच्छी पेज नंबर 11 रे जो फॉर्मूलाज गुडा अच्छी तापर सिंगुलर प्लूरल भी तुमको मु बुझे देइथिली से दीटा को तुमे मुखस्त कर साला परे ही ए जिंसोटा को करि परिबो। सो कमिंग टू द टॉपिक, सी आई हैव ऑलरेडी रिटन अ पैराग्राफ फॉर यू. सो दिस इज एक्टिविटी फॉर कनेक्टिव्स प्रैक्टिस तीनटा मु तुमको पैराग्राफ देबी तुमे जस्ट सॉल्व करिवो. नेक्स्ट क्लास हम सेटा को डिस्कशन करबा एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 2 दैट इज व्हाट डेवलपिंग आइडियाज इनटू अ पैराग्राफ, राइट. सो बिफोर दैट just go through this देखि दियो मु केमति कोन लिखिछि वर्ड्स गुड एक्सप्लेन कर दोछि कोठी बुझिया पे जदि प्रॉब्लम हो सेटा को मध्य मु कहि दोछि. कोन लिखिछि माय फ्रेंड इज अ सिंगर फुल स्टॉप, ही इज इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग डैश ही इज क्रिएटिव डैश ही हैज नेवर रिसीव्ड एनी अवार्ड in India, comma, dash he won a prize in the competition in America last year, full stop, right. Then what I have written, dash he has decided to leave India and settle down in where? America. I repeat again, see what I have written. My friend is a singer, he is intelligent, dash hardworking, dash he is creative, dash he has never received any award in India, comma, dash he won a prize in a competition in America last year, dash he has decided to leave India and settle down in America. So this is the paragraph which you need to solve, and the things, the words which I have already given you here are although, therefore, moreover, but and. These are the 5 words which will be used and put in this paragraph for you to get the correct answer. So before solving this activity, go through page number 11 which is the your formula which is given, the words which are given. After that go through the singular and plural form, it will also help you to do this thing. After that start doing this thing and I am sure that you people will be able to solve this thing. अच्छा, तो एक नंबर टा मु लिखि देछि, होप तुम एटा को लिखि देथिबो. मु एटा को इरेज करिकि सेकंड नंबर पैराग्राफ टा दोछि, तो तुम पॉज करिकि एटा को आउ थरे देखि दबो. See now the second activity which I will be writing, that is I went to the park dash it was too wet to go on the side, right, full stop. The slide was wet dash I went back home again, full stop. Moon was across dash I broke
her favorite was, full stop. Moon is the name of a girl. Moon shouted at me dash, she sent me to my room. Clear? Full stop. The wizard waved his magic band dash, nothing happened. Right? After that, the last line, either the band was broken, dash, the wizard had forgotten his magic words. Okay, I am repeating this paragraph again. Make sure you understand whatever I am telling. I went to the park dash, it was too wet to go on the side, full stop. The side was wet, full stop. Sorry. This slide was wet dash, I went back home again. This sentence is continuing the second line and the full stop is here in the last. Okay, the slide was wet dash, I went back home again. Next, moon was across dash, I broke her favorite vase, full stop. Moon is the name of a girl, right? Okay, the next line, moon shouted at me dash, moon shouted at me dash, she sent me to my room, full stop. The wizard waved his magic band dash, nothing happened, full stop. Either the band was broken dash, full stop. The wizard had forgotten his magic words. I hope this paragraph is clear with all the spellings. Okay, so now the words which you need to fill in this paragraph, that also I am giving it to you. That is, the words which you will use is but, or so, before, because, however, or. एतिकी वर्ड्स को तमे यूज करके ए पैराग्राफ टाको फिल करिवो, राइट? I hope you have wrote this paragraph. I am erasing this paragraph. What you need to do is you need to pause the video and write this entire paragraph in your notebook and solve it down later. So I am erasing this paragraph again because I have very less time. The last paragraph which I will be giving you, and then I will be starting with my next chapter, that is developing ideas into a paragraph. Okay, so the last activity is, in this last activity, third number activity, I won't be giving you any options. जो words गुड़ा मु दउतली से गुड़ा किछि देबेनी, खाली गोटे पैराग्राफ देई देबी, तमो काम होची सबुटु appropriate word से सिचुएशन रे तमे पुट करिवो. एटा रे ही तमरो टेस्ट, एटा ए एक्टिविटी रो ही तमे जदी ए एक्टिविटी टाको सॉल्व कर देलो, तमे जानि जिवो जे हां तमे कनेक्टिव्स को यूज करिया पई एबल हे जाइछो. Okay, the last activity, see students, I went to the shops dash, we had run out of milk and eggs. Sorry la,
Second line, we went to the beach. समुद्र पाखरे गलु dash I forgot my sunscreen. मु कौन कही एक्टिविटी सॉल्व करबा समय रे कौन तमे करबो से लाइन टाकू एंटायरली निजर मदर टंग मातृभाषा रे ट्रांसलेट कर देबो. देखिबो ऑटोमेटिक मझिरो जो वर्ड गुडा जोटा के मैं कनेक्टिव्स बोली कहूछु सेटा तम मुहरे चली आसीबो. सेटा तापर तम काम होची सेटा को तमे केमती इंग्लिश रे ट्रांसलेट करबो से जिनसटा तुमको करबाको पड़िबो. सेटा ऑटोमेटिक प्रैक्टिस करू करू हेइ जिवो. So this was the second line. The third line, see, it is harder to get school dash it is snowing. Fourth line, I like cats dash they don't like me. Okay, so see the fifth line, we went to see a film dash I had what? Popcorn. See the next line, our dogs has a loud bark dash he is very what? Friendly. The next line, it was a beautiful day dash we had a picnic in the park. Right? Another line, I love going to the fun fair. I love going to the fun fair dash I love all the rides. Finished? Okay, एतिकी होची तमरो ए paragraph activity जोटा मु तुमको देली. Your task is now the rest to activity what? Contain some options in which you need to choose any one. But एटा रे कोन कहिली बिल्कुल भी तुमको मु किछ ऑप्शन देबिनी. एटा रे तमे कोन करबो पेज नंबर 11 को खोलिबो लर्न बाय हार्ट जोटा तमे करथिलो. सिचुएशन हिसाब रे फर्स्ट कोन करबो लाइन गुडा को निजर मदर टंग रे ट्रांसलेट करबो. ऑटोमेटिकली दिस मिड वर्ड विल कम टू योर इंस्टिंक्ट. ऑटोमेटिक से चली आसीबो. तापरे व्हाट इज योर वर्क? योर वर्क इज टू ट्रांसलेट दैट कनेक्टिंग वर्ड्स इन English. Fine. So I hope this paragraph is completely clear. I am reading it once again. See, I went to the shops dash we had run out of milk and eggs. Second line, we went to the beach dash I forgot my sunscreen. Third line, it is harder to get school dash it is snowing. Fourth line, I like cats dash they don't like me. We went to see a film. I had popcorn dash I had popcorn. Our dogs has a loud bark भोके बहुत जोरे dash he is very friendly. It was a beautiful day dash we had a picnic in the park. I love going to the fun fair dash I love all the rides. I hope this paragraph is clear. Now what you need to do is you need to again pause this movement and write this entire paragraph in your notebook. So now I'll be raising this and I'll be starting our new chapter, that is developing ideas in the paragraph. So you'll be taking out your invitation to English 3. So see students, now we will be starting with our new chapter which is present in page number 22.
developing ideas into paragraphs, right? This is your what? Our chapter 2. एटा में जी स्टार्ट करले छुआ माने देखो ए चैप्टर टा बेसिकली 30 पेजेस रो गुटे चैप्टर, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड द एंटायर 30 पेजेस इन दिस सेशन. सो मु कोन करबी तुमको सबटो इंपोर्टेंट जिंसो जोगुडा सेउडा मु रिवाइज कर देबी, तुमको बुझाई देबी. रेस्ट यू जस्ट नीड टू लुक वंस एज यू आर लाइक हैविंग a bit of time. What you need to do, 30 pages रो जो चैप्टर टच तमे गणी की देखि दबो 22 रु लास्ट जो पेज अछि चैप्टर रो मिनिमम 30 पेज रो चैप्टर जेटा की पढेबा लाइक डिफिकल्ट नो, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन दिस YouTube प्लेटफॉर्म. सो जेटा मु करबी इज मु से 30 पेजेस रो सबटो इंपोर्टेंट जो लेसन गुडा अछि, जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स गुडा अछि, दैट आई विल मेक श्योर कि तमे बुझी जाउछो जोडा कि सबटो इंपोर्टेंट करि साला परे. व्हाट वी विल डू इज वी विल सॉल्व सम एक्टिविटीज एंड आफ्टर दैट योर कांसेप्ट विल बी क्लियर. सो टेक आउट पेज नंबर 22, इन्विटेशन टू बुक 3. आई रिपीट, इन्विटेशन टू बुक 3, पेज नंबर व्हाट 22. बुक खोलिले पेज ऑटोमेटिकली जानि जिवो को पेज नंबर. सो पेज नंबर 22 खोलिबो, को बुक नबो इन्विटेशन टू इंग्लिश 3. चली आसो से कोन कहि छि चैप्टर 2 को हमें बिगिन करियो. विल स्टार्ट रीडिंग इट. डेवलपिंग आइडियाज इनटू अ पैराग्राफ. सो देखो से कोन कहू छि, इन द प्रीवियस चैप्टर यू स्टडीड द यूनिटी एंड कोहेरेंस इन अ पैराग्राफ. या पूर्व चैप्टर रे तुमे कोन पढिथिलो, यूनिटी, ऑर्डर, कोहेरेंस केमती यूनाइट करा जाय, केमती ऑर्डरली लेखा जाय, केमती फुली स्ट्रक्चर्ड लेखा जाय, गुटे पैराग्राफ रे हमें पढिथिलु. तापरे कोन, you also studied the basis of arrangement of ideas into a paragraph like cause, effect, comparison, contrast, etc. काली जो लास्ट दुटा फार्मूला दितली टाइम, स्पीड और कोन उठे, तापरे डेफिनेशन, एग्जाम्प्लिफिकेशन, तापरे कंट्रास्ट थिला, कॉज थिला, कोन पई होची सेडा सब हम लास्ट रे पढिथिले. सेडा को से रिवाइज करला जे आमे ओडा सब पढी सारी छ ऑलरेडी. कोन ए जिंस उडा में पढी सारी छ. तापरे कोन लिखिला, you know that if you wanted to tell a story you would not do it the same way as you would explain them in a geometry. Yes or no? Geometry is what? It is almost like drawing a diagram, and diagram draw kar dele the reader is automatically able to understand that what you are talking about or what is the thing you are explaining about. So in literature we don't need to draw a diagram to explain a paragraph or what has happened in a essay or write about something, right? We don't ame kon diagram draw kar chu ki gote amko bishay diya hai chi, for example narrate about a road accident which you saw. tame kon kariba chhobi anki dabo ki nai na, you will explain. So सेटा इसे कहू छी जे you don't need to draw a diagram or a geometrical form. What you need to do is you will you know that you wanted to tell a story, you would not do the same way as you do the geometry. तो geometry भलिया किछि करिबार नै, हमको एक्सप्लेन करिबार अछि. एक्सप्लेन करिया पे हमें जहा जहा दरकार लास्ट क्लास में हमें पढिथिलु, टिके रफ आइडिया में पाइथिलु, जेमति कि टाइम, स्पीड आउ कोन गुटे थिला, देन एग्जाम्प्लिफिकेशन, डेफिनेशन, कॉज, इफेक्ट, कंट्रास्ट, लास्ट ए पटे थिला दीटा एक्सप्लेन करिथिली. सेटा को हमें पढि सारी ऑलरेडी. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, देखो कोन कहूची, देयरफॉर देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डेवलपिंग ए पैराग्राफ डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक एंड पर्पस ऑफ राइटिंग. बहुत गुड़ा पद्धति अच्छी गोटे डेवलप गोटे पैराग्राफ को बिल्ड करिया पई, गोटे पैराग्राफ को तैयारी करिया पई, डिपेंडिंग कोन काहा ऊपर डिपेंड करी कि को टॉपिक ऊपर हम लेखुछु आ हमर लेखिबार कारण कोन, हमर लेखिबार पर्पस कोन, जेटा को हम कहूछु. तापर देखो कोन कहिछि, वी शैल स्टडी सम मोर वेज नाउ एंड इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर we will develop our ideas into a longer piece of writing in the same light. एबे हमें कोन करबा, हमें भी डिस्कस करबा किछि गुटे एई चैप्टर रे नाउ वेज पद्धति किछि मेथड्स हमें जानिबा जोटारे हमें गुटे पैराग्राफ को डेवलप करिया पे किछि हमर आइडियाज मिल जिवो, केमति ताको लेखा जिवो से विषय रे हमें टिके फोकस करबा द सेम लाइट जोटा लेखा हिच. तापरे कोन कहिला, we will also learn to mix different ways of developing our ideas into one or more paragraph. या परे हमें कौन सिखिबा, हमें एटा मध्य सिखिबा
जे होची केमिति आमे आइडियाज गुडा को विभिन्न आइडियाज गुडा को मिक्स करिकी पैराग्राफ रे पुट करि परिबा सब आइडियाज को मिसी की गोटे पैराग्राफ में लिखि परिबा कि नाही आमे कोन करिबा पैराग्राफ मझे टिके ब्रेक दो गोटे लाइन छाडू तापर नेक्स्ट लाइन रे डेवलप करू सेही जिंस गुडा मध्य आमे एई चैप्टर रे सिखिबा तो देखिनियो छ माने हम चली असला मेन जिंस द कॉमन वेज ऑफ डेवलपिंग पैराग्राफ आर common ways of developing your paragraph are number 1 is narration जोटा को हमें narrative बोली मध्य कोई पारू explanation बोली मध्य हमें कोई पारू second टा कोन description detail रे हमें गोटे paragraph ऊपर describe करबा third टा कोन exposition कोन to explain the idea or instrument or problem कोन पाई लिखि छी कोन से विषय रे प्रॉब्लम हे छी से जिंस गुडा को जत हम एक्सप्लेन करजु सेटा हमर एक्सपोजिशन रे जाउ छी एटा डिटेल्स मु गुटे गुटे करके पढेबी आज मु नरेशन ऊपर पढेबी तापरे आ गुटे कोन रहिला आर्गुमेंटेशन जेटा कि हमर लास्ट आर्गुमेंटेशन और परसुएशन आर्गुमेंटेशन जहा persuasion से यार उडे डिबेट हुए जते बेले हमें कोन करू आर्ग्यू करू ऑन अ सर्टेन टॉपिक in the same way whenever we are writing a essay there are some argumentative essay in which you don't agree to the points at that time what your narration your paragraph writing converts into a argumentative topic okay I hope ए चारटा पॉइंट तुमे बुझी पालो टिके टिके जो आईडिया देली आज मु स्टार्ट करबी को जिंसोटा narration today we will go through this point which is known as what narration so take out your book see again page number 22 invitation to book 3 2.1 narration narrating an event तापरे कोन देखो गुटे एक्सपेरिमेंट गुटे विषय दिया छै सेटा पढे को पड़िबो read the following paragraph and see how the sentences have been arranged on my way to home from work yesterday evening I saw a small boy standing outside on a door struggling to reach the doorbell here let me help you I said pressing the doorbell for him thanks mister said the small boy starting to run away but do not stand there you will get caught he added and he disappeared down the road ए पैराग्राफ टे पढि सरला पारे आमे जानि गनु किछ गोटे नरेशन करूची जणे जनकर एक्सपीरियंस नरेट करूची गोटे कोटी पिल्लाटा अछि गोटे छोटो पिल्लाटा अछि ताको कोन आसी किछ बेल बजै पार नथुला तो से विषय रे सी हमर जे राइटर जे लिखिचंती पैराग्राफटा सी गोटे छोटो पिल्ला को हेल्प करूचंती हेल्प करले बेले तांकर एक्सपीरियंस कोन थिला सेटा को से कंप्लीटली डायरेक्ट स्पीच रे कोन डायरेक्ट स्पीच रे सी एक्सप्लेन करिचंती तापरे से कोन कहउचंती देखो तोरे एक्सप्लेनेशन ता देखो जेटा कि सबटू इंपोर्टेंट the order of the ideas is straightforward I told you it is already written in the active sense or active voice जेटा को मैं कहितो माने डायरेक्टली हमरो राइटर जो वे रे कथा हेतिले हमरो से छुआडा संगे सेटा को डायरेक्ट लिखिचंती केमति जानलो ए देखोडी लिखाई छी here let me help you with an exclamatory so that is there in the active voice if एटा passive voice रे ही थांता तो लिख थांते I told that boy that let me help you got my point so idea of this paragraph is completely simple and straight and logical so what the ideas the order of the ideas is straightforward the order of the ideas is straightforward each step of the incident is narrated in the order in which it takes place जो भाबरे सेठी हेतिला सेम वे रे ही narrate करा है जे active voice रे कहि देली when an incident is narrated in detail it may be necessary to write more than one paragraph जते बेले हमें गोटे incident को गोटे जिंसो जोटा हम संगे सेल्फ संगे हेई था हमें जते बेले एक्सप्लेन करू हमें कोन भाबू आहुरी याको बडो करके लिखिबा आहुरी पॉइंट्स या देरे ऐड करबा जेटा कि ठीक नु है काहे कि देखो बेसी कहबो when an accident is narrated in detail it may be necessary to write more than one paragraph there is no defined option on where to end one paragraph and to start another however you should make sure that one paragraph is not too long and that your paragraph shows some unity कोन कहला जते बेले हमें गोटे विषय को नरेट करबा को लागि जाऊ हम संगे कोन हेतला हेई नथिला सेते बेले हमें कोन जनरली गोटे वास्ट आइडिया चलिए से गोटे वास्ट लेखा को इच्छा होवे बट नाही you cannot write and go on writing so you need to stop somewhere आ किछि गोटे माने there is no definite option where to end one paragraph सेमति किछि ऑप्शन नाही कोठी गोटे एंड करिया हुए गोटे पैराग्राफ सेमति किछि नियम नाही जे मोय पैराग्राफ ता 4 लाइन रे ही एंड करबी मोर 10 लाइन भी हे पर 15 लाइन भी हे पर बट लॉजिक सेटा नुहे लॉजिक होची where to end one paragraph and start another however you should make sure that a paragraph is not too long as we are literature student as we are doing English so एटा हमको माइंड रखे को पड़िबो गोटे जिंस अतिरिक्त बड़ हे गले सेटा भलो लागिबो नाही so next what
कहला एंड दैट योर पैराग्राफ शुड हैव सम यूनिटी यूनिटी तो इज ऑब्वियस यूनिटी न हेले तो हे पारिबनी सेकेंडली कौन से पॉइंट टा कहूची देखो सेकेंडली यू मे हैव टू इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन और सेटिंग इन ऑर्डर टू मेक योर नरेशन मोर इंटरेस्टिंग कौन कहला गुटे डिस्क्रिप्शन कहबा कहला जो सीन रे हेतला जेमति कि एठी हमरो एग्जांपल जो ऊपर दिया जेटा कोन ऑन माय वे टू होम फ्रॉम वर्क इन यस्टरडे इवनिंग टा होची हमरो सीन तयारी हे गला जोटे लुकोडा जेता ता घरु ता कामरु घर को फेरतुला सेही सीन टा हमरो माइंड रे सेट हे गला सीन टा सेट हला तापरे से एक्सप्लेन करछि केमति मोड छोटो पिलाटा को देखिली देखि साला पर मु ताको हेल्प करली बेल बजेइबार XYZ तापरे कोन कहूची देखो description of the scene or the setting in order to make the narration more interesting. Can you find any such description in the story of the doorbell given above? Now read the account of an interesting event. तापरे आ गुटे एक्टिविटी दिया है सेटा को ठीक सही भाबरे पढिबो पढि सल्ला पर देखिबो किछि पॉइंट्स तुमको दिया है narrative passage usually gives an account of an event using a sequence of action. The following sentences tell us what happens in passage A. Can you put them in chronological order? तो एठी कोन ए जे पैराग्राफ टा दिया है पढि सल्ला पर देखिबो कोन हेथिबो कि छोटे ऑर्डर वाइज यूनिटी वाइज लेखा हे नथिबो किछि नै सिंपली से पैराग्राफ टा को पढिबो जोटा कि पेज नंबर 23 रे अछि तार आंसर मध्ये केमति क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे दिया हेछि सेटा को मध्ये पढिबो पढिले तमे स्ट्रेट आईडिया पाइ जिवो आईडिया पाया पूर्वरु जोटा मेन जिंस मोर ए विषयटा बुझेबार जैसे कोन कहिला गोटे नरेशन जतले हमें करिवु आम माइंड रे बहुत गुडा आइडियाज चली आसीबो बट इट इज वेरी इंपोर्टेंट दैट यू शुड नॉट मेक द पैराग्राफ that big because it will be illogical. There is no certain method or function or formula in which you can end your paragraph somewhere. It can be like of 3 lines, 4 lines, 10 lines, 15 lines, but you should end your paragraph because if your paragraph is too long then it is not considerable. So you should end your paragraph somewhere and leave some space and start the next thing. एतिक जिंस हम माइंड रे क्लियर हैला आ गुटे जिंस हम जानिलो जे गुटे सीन को जतरा हम नरेट करूछु गुटे सीन हमको सेट करिवार थाए जेंति कि मु एबे पढोछि मु एबे सागर कॉलेज रे अछि मु सागर कॉलेज जेंति कि मु एबे सागर कॉलेज रे अछि मु सागर कॉलेज रे एबे कोन YouTube क्लास करूछि मोर गुटे सीन डेवलप हेछि एटा YouTube क्लास रो तमे सीन देखि परथुबो ए सीन ता मु निजे क्रिएट करिछि और जतरा मु नरेट करबी आज मु दिन सारा कोन करली तो मु सेटरे लिखिबी दैट टुडे आई वेंट टू Sagar College and I went to the YouTube class room and then I was teaching this chapter. Yes or no? So the scene is set where? In the YouTube room of Sagar College of Science, Baleswar. Right? So I developed a scene. So this is the only thing you need to do. ए तीनटा जिंस हम माइंड रे क्लियर हैला एबे तमरो काम होची देखो छुआ माने पॉइंट नंबर जो पेज नंबर 23 जो एक्टिविटी देछि सेटा को भलो भाबरे पढिबो पढि सल्ला पर जो पॉइंट जोड़ देछि सेटा मध्ये पढिबो ता तो देखो आउट एक्टिविटी अछि द अदर इंपोर्टेंट थिंग टू नोट इन अ नैरेटिव पैसेज इज द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एग्जांपल इन द पैसेज बी बिलो द सेम इंसिडेंट इज नरेटेड फ्रॉम द हॉर्स पॉइंट ऑफ व्यू तो कोन कहछि आउट एक्टिविटी देछि सेटा पढि सल्ला पर तमे जानिबो केमति गुटे हॉर्स घोड़ार पॉइंट ऑफ व्यू रो से एक्टिविटी को एक्सप्लेन कराई फॉर एग्जांपल मु मो घोड़ा गोटे जगह अच्छु है मु जो नरेट करी मो पॉइंट ऑफ व्यू नरेट करी जे मो संगे मोर घोड़ा थिला मु घोड़ा संगे जाइतिली अमुक अमुक जगह को जाइतिली एते एन्जॉय करली या देखिली या सीन थिला या सीनरी थिला बट जते बेले माय हॉर्स विल गो टू नरेट द सेम थिंग तो कोन हॉर्स विल नरेट इन इट्स ओन पॉइंट ऑफ व्यू हॉर्स सब बेले नरेट करबो जे मो मालिक मो संगे थिले आमे ए जगह को जाइतिलु मालिक ए जगह रे रहिथिले ए सब जिंस नरेट करिवे तो ऑलवेज देयर आर 2 पॉइंट ऑफ व्यू ए एंड बी बुझियला ए होची जहा संगे रे हेथिबो माने फॉर एग्जांपल जेमति हॉर्स आ मैन गोटे जगह को जाइछंती तो हॉर्स जतरे नरेट करबो से निज पॉइंट ऑफ व्यू रो नरेट करबो आ जतरे मनुष्यटा नरेट करबो सी मैन माने मनुष्यर पॉइंट ऑफ व्यू रो नरेट करबो एतिकी ही अछि बेसिक आउ किछि नै नरेशन रो मेन जिंसो हमें समरी ए बुझिया को पाइबा जे गोटे पैराग्राफ जतरे हम लिखिबा सेतरे हम ताको अतिरिक्त बड़ करबा नाही सेमति किछि फंक्शन नाही सेमति किछि वे नाही जे गोटे पैराग्राफ को मु लंबाई परबिनी मु आराम से लंबाई परबी 10-15 लाइन 25 लाइन करि परबी बट सेटा गोटे इलॉजिकल हे जिवो आ सेटा कोन टू लॉन्ग जदी तमरो गोटे पैराग्राफ हे जिवो ताने कोन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड सेकेंडली कोन गोटे सीन को डेवलप करिया पूर्व नरेट करिया पूर्व हमको गोटे सीन सेट करबा थाए तो जो जगह से जिंसोटा हेछि सेटा को हमें ड्राइंग रे तुम सीनरी करछु आगे कोन करछु सान करछु तापरे माउंटेन्स करछु गोटे सीन हमें ड्रा करछु सेटा को जतण हमें ड्राइंग करसला पर नरेट करछु हमें सन टू स्टार्ट करछु वी आर डिस्क्राइबिंग द सीन देन वी आर नरेटिंग सो दीस आर द 2 points which you need to understand while narrating your what paragraph
दैट्स इट, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्लास रे मु डिस्कशन करिवि तमरो डिस्क्रिप्शन उपरे। तमरो काम होची छुआ माने तमे कोन करबो ए एक्टिविटी जोटा अछि गोटे एक्टिविटी देखो मु बुझे देली ऑलरेडी जोटा कि पेज नंबर 22 रे थिला। पेज नंबर 23 रे जो एक्टिविटी अछि दैट यू विल गो थ्रू द पॉइंट्स व्हिच आर देयर रिटन इन बिलो वाइज यू विल आल्सो अंडरस्टैंड इट इज डायरेक्टली रिटन नथिंग लाइक किछि रॉकेट साइंस नाही आराम से तमे बुझी परिबो कोन लिखाई छी। तापर आ गोटे एक्टिविटी मध्ये देइछि सेटा कोन ऊपर जो एक्टिविटी देइछि सेटा गोटे मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू रे अछि लास्ट एक्टिविटी जो देइछि सेटा गोटे हॉर्स पॉइंट ऑफ व्यू रे अछि। ओके तापर देखो पेज नंबर 24 रे जोटा अछि सेटा से एक्सप्लेनेशन दिया है केमती से कोन हेइतिला से पैराग्राफ रे सेटा मध्ये तमे पढिबो पढि सारला परे आउ जति कि एक्टिविटी अछि आउ एते किछि देखिबा दरकार नै। एक्टिविटी 4 टा टिके देखैबो सेटा रे टाइम वाइज लेखा हेछि सेटा टिके इंपोर्टेंट अछि हम टिके डिस्कशन कर दबा। पेज नंबर 25 रे जोटा अछि देखो द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट भुवनेश्वर नेक्स्ट वीक एंड द फॉलोइंग is the tour program. Write a short account of the planned tour using the points below. एटी कोन टाइम वाइज हमको गोटे स्ट्रक्चर दे देछि प्राइम मिनिस्टर दिल्ली जिबे कोन कोन करिवे टाइम वाइज सेटा को हमें लिखिबा नरेट करबा। तो सब बेले तो हमें टाइम लिखि परिबेनी दैट द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड बाय ए स्पेशल प्लेन फोर्स बाय 10 AM then at 10 AM reception by chief minister at the airport was taken एमती तो प्रति लाइन रे हम टाइम मेंशन कर परिबेनी तो गोटे लाइन रे टाइम मेंशन करबा दीटा लाइन रे स्किप करके नेक्स्ट टाइम टा मेंशन करबा केमती लिखिबा। फॉर एग्जांपल the prime minister arrived at Bhubaneswar airport by a special air force plane by or at 10 AM then he was received by the reception at the airport 10 मेंशन करे दरकार नहीं। तापर कोन लिखिबा at 10:30 AM he was supposed to attend a meeting with the state secretariat about or regarding discussion with the chief minister then he started his meeting with the party workers then at 12:30 PM he laid the foundation of the software technology park then he had a meeting with the press he had his lunch by 2 PM in the Raj Bhavan then he returned to Delhi by 3 PM। तो ये देखो दि तीन टाइम मु स्किप करली बिकॉज से लिखिबा किछि दरकार नै तो तमे पॉज मारि कि देखि देबो कोठी कोन मु लिखिछि एई भाबरे ए पैराग्राफ टाकू तमे निजो लैंग्वेज रे लिखिबो मु ऑलरेडी कहि देली तमे सुनिथिबो पॉज मारि कि सुनिबो पुनी ताकू निजो लैंग्वेज रे लिखिबो। एमती तो टाइम वाइज डिस्क्रिप्शन थाए ना यू डोंट नीड टू पुट ईच एंड एवरी टाइम 10 टा रे मु एटा करली 10 टा 10 रे एटा करली 10 टा 15 रे एटा करली 10 टा रे जहा करली स्ट्रेट चली आसे 11 टा रे मु कोन करली गॉट इट ठीक अछि एटा हे गला। नेक्स्ट क्लास रे आमे हमर डिस्क्रिप्शन ऊपर पढिबा तमरा काम कोन एक्टिविटी गुडा भलो भाबरे देखिबो बुझी जीवो किछि सेमती डिफिकल्ट नाही एक्टिविटी पढिबो ता तळे तळे कोन कोन पढाई छि देखिबो लेखाई छि देखिबो एक्सप्लेनेशन गुडा भलो भाबरे मार्क करिवो आ कोन कहथली गुडा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कैरी करिवो सब बेले तम पाखरे के माने थाई पारे न थाई पारे एक्सप्लेन करिया पे वर्ड्स कोन जदी गुडा डिक्शनरी थिबो देन इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। So I hope this class is beneficial for you. I remind you again do that practice connectives which I have given you जोड़ा लेखि के देली practice करिवो सेटा आ activities गुडा चेक करिवो। Thank you.